Hello everyone, welcome back to our channel The Kraken. So today in this particular session we are going to discuss one important session for the ABM CIB, right? So next CIB exam is very important because after that we are going to have the new updated pattern and always 5 topics, right? 5 papers. So this is very important for us to clear this in one go. So no worry, because we need to focus on our efforts and definitely we'll clear it. So with that we are continuing with one session, one case study. This is very simple one. We're going to discuss something asset and liabilities of balance sheet, right? So which we have already learned during our GIB preparation. So this is like a warm up, or you can say a replay session. Okay, so try to answer it because we will definitely have this is the easiest one and we will definitely have something 2 to 3 questions from this as well, right? So try to memorize all the formulas for the ratio calculation and we will definitely have 4 to 5 marks. So let's start the session for today. So this is the case study. So here there are many information related to balance sheet has been given, that is cash in hand and all those things. You already know all the definitions, and if you have no idea regarding any type of definitions, then try to google it, right? So this is very easiest one. Just try to remember the formulas and in the calculation which we are going to include, right? So let me show you the first question. So this is the first question. You can see here, what is the amount of current assets? So we need to calculate the current asset, right? For this to calculate this current asset, we need what are the things from the balance sheet we are going to include here. That's very important to know. So first, for current assets, that means which current assets means, that means which we can convert it into cash very easily, right? So it's like ready to use, we can say. Current assets are like ready to use. So this is in form of cash, or also any type of asset we can convert it into cash very easily, right? So that's the very important point we need to remember. So for calculating the current asset, we need to know what are the things we are going to include. First one is, that is cash in hand we are going to include. Okay, cash in hand, and next one will be sundry debtors. सो ये जो छोटे छोटे हमारा डेप्टर्स रहते हैं, दैट इज सन्ड्री डेप्टर्स. सो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन करेंट एसेट. सो नेक्स्ट वन इज स्टॉक्स. व्हाट इज दैट? दैट इज स्टॉक्स, right? So next one will be prepaid expenses. So what are the expenses which are in prepaid in nature, right? That means हमने पहले से ही उसको प्रीपेड कर चुके हैं, मतलब पहले से ही उसको पे कर सकते हैं, लाइक एडवांस टैक्स एंड लाइक दिस, ठीक है? सो प्रीपेड टैक्स यहाँ पर जो हमारा ऑरेंज कलर में है, सो दैट विल बी एडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ करेंट एसेट्स, ठीक है? सो इसमें हमारा क्या हो गया, देखो ये हो गया 2 प्लस दैट इज 16 प्लस दैट इज स्टॉक्स इज 20, ठीक है? प्लस हो गया दैट इज 2. इसको ऐड कर लेंगे तो वी आर गेटिंग 40 इज द आंसर. गॉट इट? सो आपको बस ये याद रखना है कि जो भी दिया जाता है जो कि हमें रेडी टू यूज़ के फॉर्म में रहता है और हम कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो 40 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन 1. सो नेक्स्ट वन विल बी क्वेश्चन 2. व्हाट आर द करेंट लायबिलिटीज, ठीक है? सो करंट लायबिलिटीज में हम कौन सा ऐड करेंगे? लेट मी यूज अनदर कलर. ओके, so in the calculation of current liabilities we are adding the something like provisions for expenses. दिस इज करंट लायबिलिटीज. और नेक्स्ट वन इज प्रोविजंस फॉर एक्सपेंसेस. जैसे कि हम बैंक में क्या करते हैं, जैसे क्वार्टरली एंडिंग करते हैं, ठीक है? सो क्वार्टरली क्लोजिंग के टाइम हम जो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या होना चाहिए, तो उसको हम प्रोविजन, मतलब जो भी हमारा, पकड़ लीजिए मेरा इलेक्ट्रिक बिल है जो कि मैं अभी पे नहीं किया हूँ इस फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है? सो दिस इज में फर्स्ट क्वार्टर इलेक्ट्रिक बिल मेरा 100 रुपये हुआ है, मेरा नहीं हुआ है, तो ये मेरा लायबिलिटी है टू पे, ठीक है? सो पकड़ लीजिए मेरा क्लोजिंग हो गया 30 को, तो मैं क्या करूँगा, 30 को क्या करूँगा, इसको प्रोविजन कर लूँगा. सो दिस इज ऑल्सो माई करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटी मतलब इसको मैं बहुत जल्दी वाला लायबिलिटी को पे करने वाला हूँ, जैसे कि मैं 1 तारीख 2 तारीख या विद इन 10 इसको मैं पे कर लूँगा नेक्स्ट में. और ये जो करंट लायबिलिटी प्रोविजन करंट प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, मतलब ये जो हमारा एक्सपेंसेस है, ये जो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा नेक्स्ट
के लिए जो भी ये जो अगर हम प्रोविजन कर लिए 100 रुपया और पकड़ लीजिए ये वाला फर्स्ट क्वार्टर में मेरा 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें ये 100 ही माइनस होगा, नॉट कि यहाँ पर क्वार्टर 2 से। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग फॉर द प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा दैट इज करंट लायबिलिटीज के केस में। सो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सो सन्ड्री डेप्टर हमारा हो जाता है करंट एसेट, तो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा करंट लायबिलिटी। गॉट इट? सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा और एक आर्ड हो जाता है एक्सपेंसेस पेएबल, जो कि हम एक्सपेंसेस है मेरा जिसको मैं पेएबल है, दैट इज वेरी शॉर्ट पीरियड, मतलब ये करंट लायबिलिटी विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ बोरिंग, जैसे कि विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी नीड टू पे इट बैक। सो दैट इज एक्सपेंसेस पेएबल, सो CL हमारा हो जाएगा। सो नेक्स्ट हो जाता है बैलेंस बैंक CC और OD, ये भी हमारा है करंट लायबिलिटीज, बिकॉज CC/OD जो होता है नॉर्मली उसका जो लिमिट होता है ना फॉर 1 ईयर पीरियड के लिए रहता है। आफ्टर दैट वी नीड टू रिव्यू दैट पर्टिकुलर लिमिट। एंड ये जो CC/OD लिमिट होता है किसके ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि हमारा टर्नओवर होता है, एनुअल टर्नओवर हो जाता है, ठीक है, उसका सेल्स एंड परचेसेस के ऊपर भी डिपेंड होता है, ठीक है। सो स्टॉक्स के ऊपर भी डिपेंड हो जाता है, सो कितना अवेलेबिलिटी उसका है। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स वी आर considering for calculating the CC/OD limit review, right? सो ये हो जाता है 4 हमारा, जो कि हमारा इसके अंदर आर्ड ऑन होता है। अगर इसको हम ऐड कर लिए तो 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये हो गया 2 और नेक्स्ट हो गया CL हमारा 12 और ये हो गया हमारा फिर से 2 और ये हो गया हमारा 14, 2 + 12 + 2 + 14। सो हमारा करंट लायबिलिटीज कितना हो जाएगा, दैट इज 30। सो आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज 30। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर, राइट? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन से पहले वी नीड टू नो कि लॉन्ग टर्म सोर्सेस क्या होता है, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म सोर्सेस को अगर हम कैलकुलेट करें, लेट मी शो यू दिस। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या होता है, दैट इज द मनी रेज थ्रू शॉर्ट टर्म दैट इज रिक्वायर्ड टू पे विद इन 1 ईयर। अगर 1 ईयर के अंदर आप पे बैक करते हैं देन दैट विल बी द शॉर्ट टर्म, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म सोर्सेज वही होगा, ठीक है, जो कि हमें मोर देन 1 ईयर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट इज मोर देन 1 ईयर होगा, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। सो इसके अंदर जो क्या क्या हमारा इंक्लूडेड होता है, दैट इज यहाँ पर देख सकते हैं इक्विटी शेयर्स, कैपिटल, प्रेफरेंशियल शेयर, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, डिबेंचर्स, डिपॉजिटर्स, ये सब हमारा लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंदर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। सो इक्विटी शेयर्स, दीज आर द थिंग्स। सो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के अंदर बस एक ही डिफरेंस है, विद इन 1 ईयर दैट इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म हो जाएगा दैट इज मोर देन 1 ईयर, ठीक है। सो यहाँ पर जो जो देखिए इक्विटी शेयर्स होता है, ठीक है, और सुनो ऑर्डिनरी शेयर्स, सो नेक्स्ट प्रेफरेंशियल शेयर्स, डिवेंचर्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सो लाइक दैट। सो यहाँ पर क्वेश्चन को भी देख लेंगे कि इसके अंदर क्या इंक्लूडेड होता है। So for calculating the what is the amount of long term sources, हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, लेट मी शो यू। ओके, सो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो जो इंक्लूडेड करेंगे यहाँ पर, लेट मी शो यू, एक सेकेंड। सो यहाँ पर बैलेंस शीट को जाते हैं, ठीक है। सो और एक कलर यूज़ करते हैं जो कि हम इसके लिए यूज़ करेंगे। सो लॉन्ग टर्म सोर्सेज के लिए हम यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज जैसे कि हमारा था अनसिक्योर्ड लोन्स, जो कि हमारा मोर देन 1 ईयर के लिए रहता है, या सिक्योर्ड लोन भी रहता है जब पर जिसका पीरियड मोर देन 1 ईयर रहना चाहिए, ठीक है। सो ये जो अनसिक्योर्ड लोन्स है ये भी हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट होता है कैपिटल, सो दैट्स ऑल्सो ए लॉन्ग टर्म सोर्सेज, ठीक है। सो नेक्स्ट हो जाता है हमारा टर्म लोन्स, ठीक है, और ये हो जाता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज, इसको हम LAS नाम दे देते हैं। और नेक्स्ट हो जाता है हमारा रिजर्व्स और डिपॉजिटर्स, LAS एंड डिपॉजिटर्स, व्हाट इज दैट इज वी कैन से डिबेंचर्स, LAS। सो ये हो जाता है हमारा लॉन्ग टर्म सोर्सेस, दैट इज द लॉन्ग टर्म सोर्सेस, ठीक है। सो क्या क्या हुआ, फर्स्ट वन इज अनसिक्योर्ड लोन दैट इज 8, सो नेक्स्ट वन इज 20, नेक्स्ट वन इज 20, नेक्स्ट वन इज 10 that is reserves, and next one is debentures that is 12, ठीक है। सो इसको एडिशन करने पर वी आर गेटिंग हाउ मच, एक सेकेंड। सो यहाँ पर हम जो जो LAS है उसको आर्डन कर लेते हैं, दैट इज
8 plus 20 plus 20, this is plus 10 plus 12, so you are getting 17. So total long term sources, that is the 17. ठीक है, 70. सो यहाँ पर जो ऑप्शन में है आपका 70 नहीं है, सो वी कैन से ऑप्शन डी को कर लेते हैं, दैट इज 70. लॉन्ग टर्म सोर्सेज, लॉन्ग टर्म sources, that is the final answer is 70. ठीक है, so like this you can easily answer this, and after this we will have one session for the some important ratios as well. ठीक है, so जितना भी रेशियोज है आप सबका रेशियोज का फॉर्मूला याद रखिए. ठीक है, कुछ कुछ ईजी लगेगा पर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. ठीक है, क्योंकि सबको याद रखिए, क्योंकि ये जो 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है इसको इट्स लाइक यू कैंट मिस. And in this December every single mark is very crucial, because after that you need to focus more and you need to go more deeper. I know you all can do this, but we have other things to do as well, so just give your best effort and later on the output will be followed by default. ठीक है, so happy learning, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में. टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.